Good evening, sir. Hi, good evening. Okay, we to perform readability checks. Okay, carry on for that. Do the readability check. And for me, my call sign will be Chennai Tower. Please perform readability check. Everyone, go ahead. Mine is Chennai Tower. Chennai Tower, Victor Tango, Sierra Hotel Alpha. How do you read? Victor Tango Sierra Hotel Alpha, reading you 5. Chennai Tower. ये मैंने सही बोला कि गलत बोला? Okay, saying it again. Victor Tango Sierra Hotel Alpha, Chennai Tower, reading you 5. How do you read? Reading you 5. Victor Tango, Sierra Hotel Alpha. Okay. Another station, please perform readability check. Go ahead, don't be shy. It's your practice time, guys. Perform readability check. Mhm. Yes, other stations waiting for your response. Please perform readability check. Am I audible to all? मेरी आवाज आ रही सब तक या आई एम अनरीडेबल? ठीक है. Please perform readability check. What is happening? Bravo Charlie Delta, are you inside the room or you are on duty? Any other stations? No, sir, I'm at home. You are at home. ठीक है. Then please perform readability check. Do you know how to do that? No, you need to give you need to give call for readability check. Delhi Tower, Victor Tango, Bravo Charlie Delta, UB5. नहीं, wrong. चलो ठीक है. You are you are Victor Tango Bravo Charlie Delta. That is your call sign. I am Delhi Tower. ठीक है? As in ATC. So if you want to perform readability check, then you need to say Delhi Tower. ठीक है? Victor Tango Bravo Charlie Delta. How do you read? This is the question for readability check. ठीक है? This is the portion for readability check. W1, W2, and W3, like this. Okay, sir. Got it now? And in the response, yes, when I will give the readability check to you, okay? When I will give the readability check, that time I will say Victor Tango Bravo Charlie Delta Delhi Tower, okay? Now I can say either read you 5 or reading you 5. तो आपको परफॉर्म करना है readability check procedure, and this is the response. Okay, go ahead now. Delhi Tower, Victor Tango,
Bravo Charlie Delta. How do you read? Reading you 5 Delhi Tower. ठीक है. Done. Okay. Now I am going to write certain numbers and alphabets. ठीक है. Please give me readout of those alphabets and numbers or data. मैं स्क्रीन पे कुछ लिखूंगा. You all can unmute if there is no background noise among yourself. Then you can unmute yourself and give the readability check to certain numbers and data that I am going to write here. Okay. Give the readout to this. क्या लिखा है स्क्रीन पे? Victor Tango, Quebec, Sierra, Echo. Very good. For this, Victor Tango Romeo Hotel Yankee. very good. And if I write this one, One 8 niner decimal niner. very good. And if it is go ahead. Don't feel bad about class. This is natural. बोलो. Go ahead. उससे भी हम लोग कुछ ना कुछ Runway सीखेंगे. visual range 800. Very good. And if it is in altitude, altitude है ये. Anyone? Lead the command. Don't keep mum. फटाफट बोल दो आंसर इसका. कुछ भी नहीं है. Sierra Hotel Alpha. Flight level. Anyone. Go ahead. Flight level. 189ers. 189er. बोलो. 189er. Who was saying? Very good. It is 189er 00 feet. ठीक है. Until unless it is written like in the format of flight level, we won't say flight level का format. ठीक है. अगर flight level में FL नहीं लिखा हुआ है और sometime it will be written as F 189er, तब तक हम इसको flight level के form में नहीं बोलेंगे. ठीक है. This is a simple number, so we will say 189er 00 feet. ठीक है. Can somebody try in the format of thousands and hundred? Thousands and hundreds के form में? Try, this is not 100 feet. नहीं, इतना सारा 900 एक साथ नहीं. 18,900 like that. Okay. ठीक है. 18,900. This is the altitude. What about this? Bolo, take the charge. Read it out. 200-300 feet. 200-300 feet. Otherwise, 2,300 feet. Both are correct. Very good. So these are the some of the number techniques, reading techniques. ठीक है. और थोड़ा सा बस ये कोशिश रहना है कि अगर किसी फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, फ्लाइट लेवल ये सब अगर नहीं लिखा हुआ है, then whatever is the written number, simply you need to read out that.
लेवल के फॉर्मेट में फिर नहीं बोलना है। एंड मोर स्पेसिफिकली जब कहीं पे लास्ट में फीट लिख दिया हो, ठीक है, अगर हमने लास्ट में फीट लिख दिया हो, देन इट वॉन्ट बी कम्युनिकेटेड इन द फॉर्मेट ऑफ फ्लाइट लेवल। ठीक है, फीट हमेशा सिंपल अल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, फ्लाइट लेवल्स में नहीं। चलो, सो दीज आर द थिंग्स। हु इज गोइंग टू टेल मी द सेंटर लाइन ऑफ टैक्सीवे कौन से कलर का होता है? टैक्सीवे का सेंटर लाइन सर, कौन से कलर का? ब्लू। नहीं नहीं, सेंटर लाइन देखो, ग्रीन से ही लिखा भी हो, ग्रीन इन कलर, सेंटर लाइन। एंड टैक्सीवे का एज लाइट होता है ब्लू। ब्लू। ठीक है, एज लाइट होता है ब्लू। इसको याद करने का कल मैंने एक टेक्निक बताया था ना, कि कोई भी स्पेस अगर ये इंडिकेट करना चाहता है कि दैट प्लेस इज ऑक्यूपाइड, और वहां पे कुछ भी बना हुआ है, कोई एस्टेब्लिशमेंट है, वो खाली नहीं है, वो ब्लैंक नहीं है, इन दैट केस दैट विल बी बॉर्डर्ड इन ब्लू कलर। ठीक है, तो वो टैक्सी वे का अपने आप में एक इंडिकेशन हो गया, बिकॉज टैक्सी वे इज अ डेफिनिट पाथ, तो उसका एज लाइट हमेशा ब्लू कलर का रहेगा। किसी भी मॉन्यूमेंट का अगर वो ये शो करना चाहता है कि दिस स्पेस इज ऑक्यूपाइड, तो ब्लू लाइट से। ठीक है, तो टैक्सी वे इज एन ऑक्यूपाइड स्पेस, तो वो ब्लू कलर से रहेगा एज लाइट, और सेंटर लाइट ग्रीन कलर से। नाउ अबाउट द सेंटर लाइट ऑफ रनवे, हु इज गोइंग टू टेल? White, red, white, and red. White, red and white and red. Very good. ठीक है, a combination of white, red and white and then red. Very good. ठीक है. Now, these are the things. Okay, what is the definition of apron? What are the four purpose for what apron can be used? कौन कौन से हैं? apron के मेंटेनेंस। and parking, fueling, maintenance and डिबोर्डिंग, डिसम्बर्केशन, एम्बार्केशन। very good. ठीक है, you can say in the term of deboarding and boarding also it will work. Embarkation and disembarkation of passengers. ठीक है, first, second parking, third fueling and fourth maintenance. Done. So apron is being used for these four purposes. Okay, that's a you can say a quick recap whatever we have learned till today. ठीक है, let me just once go to the lecture plan as well. ठीक है, I am going to mark the topics that we have seen till the time. So if you have any doubt over any topic, ठीक है, you can let me know. Sir, I need one more review over that topic, or I am not very convergent over that. So the very first topic, the definition of radio station, I don't find anyone have problem. ठीक है, rules of 4W, readability scales 1 to 5, how to raise the station and readability check. These many we had covered. We have seen aeronautical phonetics, reading techniques of number, time, altitude, and visibility, aerodrome and its part, definitions of airport parts and lights, ठीक है, some basic lights, and we have seen ATC office hierarchy, which department is the senior in ATC, after that what comes, after that what comes, like that. ठीक है, so out of these many topics, if anyone have any confusion over any topic, please do let me know. किसी टॉपिक पे किसी को कोई डाउट है जो मैंने टिक किया आउट ऑफ दोज?
nahi? Then somebody can tell me from yes, go ahead. स्टेशन एक बार आप बता सकते हैं? कौन सा वाला? सेकंड में थर्ड सर, टू रेज द स्टेशन. अच्छा, how to raise the station. Okay, ठीक है. Very good. Another ATC office hierarchy clear to you? Approach, control, tower, ground, कहाँ पे क्या सब है? ये भी सब थोड़ा थोड़ा है. ठीक है. तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, राइट? यू हैव पेड द फीस, यू हैव राइट कि आप पूछो कि सर ये वाला टॉपिक हमने नहीं पढ़ा या इस पे थोड़ा सा और एक बार बताइए, ठीक है? डोंट बी शाय. व्हाट विल हैपन? ओनली 2-3 स्टूडेंट्स वी आर हियर, राइट? सो वी कैन क्लियर इन वेरी ग्रेट वे. वी नीड नॉट टू बी शाय इवन, ठीक है? बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है. चलो, हम जो रीडेबिलिटी चेक परफॉर्म करते हैं, ठीक है, दैट कंस्टिट्यूट W1, W2 and W3, and for the purpose W4 as well, for the purpose of examination only. Means whom we are going to call? Mumbai ground. Who are we? Victor Tango Alpha number kilo. What is our purpose? We are going to perform readability check. So we have asked the question, how do you read? This is readability check. But if I say only raise the station, means सिर्फ ये इंश्योर करो कि जिसको आप कॉल कर रहे हो वो एक सही एटीसी है कि नहीं. इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज ओनली 2W, W1 and W2. If I say raise the station to Bangalore Tower, ठीक है, raise the station to Bangalore Tower, and you are Victor Tango Bravo Charlie Delta, so you will say Bangalore Tower, Victor Tango Bravo Charlie Delta. That's all. And in the response, Bangalore Tower also will do the same thing. They will also say Victor Tango Bravo Charlie Delta, Bangalore Tower. मतलब आप लेंदी कॉल देने से पहले ये इंश्योर कर रहे हो कि सही स्टेशन को कॉल लगा है कि नहीं. फॉर दैट पर्पस वी आर रेजिंग द स्टेशन, ठीक है, टू सेव द टाइम एंड टू हैव अ क्विक रिएक्शन बाय दैट एटीसी. ठीक है, आप बस इसमें ये दिखाना चाह रहे हो कि बैंगलोर टावर, दिस इज विक्टर टेंगो ब्रावो चार्ली डेल्टा, आई वांट टू टॉक विद यू, आर यू रेडी? लाइक दैट. इफ दे आर रेडी दे विल से बैंगलोर विक्टर टेंगो ब्रावो चार्ली डेल्टा बैंगलोर टावर. ठीक है, इन द लास्ट इफ दे विश दे कैन ऑल्सो से गो अहेड. ठीक है, गो अहेड, बोलो क्या बात है. But later we will come to say go ahead is not a right practice to say. So raising a station constitutes only 2W, W1 and W2. That's all. Clear? इसका significance ये I है. have one doubt. Yes, go ahead. Like when we are doing readability check, right? So that time also we can make a mistake, na? Suppose we have to do a readability check with ground, but unfortunately we call to someone else. Okay. So that time also okay. do we have to? Okay, that I'll tell you. Readability check is no any significant check. This is just a check कि मेरी आवाज सही से किसी भी एटीसी को पहुंच रहा है कि नहीं. तो रीडेबिलिटी चेक के टाइम पे आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, चाहे ग्राउंड हो या टावर हो या कंट्रोल हो या कोई भी हो, वो बस आपके स्ट्रेंथ को मॉनिटर कर देगा. उसके लिए कोई एलोकेशन नहीं है कि सिर्फ ग्राउंड ही रीडेबिलिटी चेक करवा के देगा. ठीक है, किसी भी टावर को कॉल करो, सॉरी किसी भी डिपार्टमेंट को कॉल करो, आपको रीडेबिलिटी चेक का आंसर देगा. क्लियर? जैसे आप टाइम पूछते हो ना कई बार कि भाई साहब क्या टाइम हुआ है बता दो, तो ऐसा कुछ है कि अगर किसी सीनियर से टाइम पूछ लो तो वो नाराज हो जाएगा, या किसी कलीग से पूछो तो वो हैप्पीली आंसर देगा? नहीं. सेम लाइक बोलते हो ना सर क्या टाइम हुआ है, बोलता है 1:15 बजे या 3:15 बजे, लाइक दैट. सेम इज द रीडेबिलिटी चेक. डन? ओके, ब्रेवो चार्ली डेल्टा, यू आर सेइंग समथिंग. सर ये
तो बेसिकली 3 एंड बेसिकली 4 में एक बार आप कह रहे थे कि फोर्थ को पहले बोलना होगा एंड एलटेल वेरी गुड वेरी गुड। चलो अच्छा, आप कॉमन प्रैक्टिस में क्या देखते होगे ऑन द एयरपोर्ट? सपोज आपको ग्राउंड रन करने के लिए जाना है, तो कुछ लोग सबसे पहले रीडेबिलिटी चेक कर लेते हैं, बट रीडेबिलिटी चेक इज ए काइंड ऑफ सेपरेट सब्जेक्ट, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम रीडेबिलिटी चेक करके ही टावर को कॉल करें। तो सबसे पहला इंटरेक्शन यू कैन मेक बाय रेजिंग द स्टेशन। कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे ही आरटी कॉल स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले रीडेबिलिटी चेक कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट अ राइट वे। रीडेबिलिटी चेक अ टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट, कि मेरी आवाज अच्छे से आ रही है कि नहीं। So whenever you want to get response from any ATC, first you will do raise the station. Now, in the readability check or any kind of call, ठीक है, any kind of call, we have studied about rules of 4W, कि पहले W1 बोलेंगे, फिर W2 बोलेंगे, फिर W3 बोलेंगे एंड फिर W4 बोलेंगे। बट W4 को W3 से पहले बोला जाता है, बिकॉज W4 रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी, which frequency you are calling. So when you will give lengthy call, later on you will come to know, जब आप लंबे लंबे कॉल करोगे ना, तो क्या होगा, this will looks very odd कि आप जब सारा मुद्दा डिस्कस कर लो, तब जाके आप ये मेंशन करो कि आप फ्रीक्वेंसी कौन सा यूज कर रहे थे while giving the call. So this will look very odd. उसका फॉर्मेट बिगड़ जाता है आंसर का। To make the better format, we are simply using the W4 before W3. ठीक है, because W4 representing frequency. Now here also you can see, what if I say Mumbai ground Victor Tango Alpha number kilo 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read on 123.5? तो बोलोगे इतना रामायण बोल लिया, लास्ट में बोल रहा है ये फ्रीक्वेंसी यूज कर रहा हूं, ठीक है? So to make the format better, we are simply placing W4 before W3. However, in the real life scenario, W4 का यूज नहीं होता है। आप जनरली नहीं सुने होंगे किसी को बोलते हुए, फ्रीक्वेंसी कोई नहीं मेंशन करता है। बट इन एग्जामिनेशन, इफ एग्जामिनर आस्क्स, ठीक है, एग्जामिनेशन का फॉर्मेट है तो वहां पे फ्रीक्वेंसी मेंशन करो। लेकिन कुछ एग्जामिनर जो कि पायलट्स होते हैं या फिर रिटायर्ड पायलट्स होते हैं, तो वो आपको बोलेंगे कि मेरे को कॉल में W4 का यूज नहीं चाहिए, तो आप उस कॉल में से W4 को स्किप कर दो, बोलने की जरूरत नहीं है। बट रूल है, तो हमने पढ़ाया कि W4 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आंसर फॉर्मेट। इज दैट क्लियर? ओके सर। So when we are going to learn lengthy calls, you will get to know, don't worry. So these are the certain topics that we have seen till the time. Now another thing regarding hierarchy of ATCs. Okay. Now someone can please tell me what are the ATC offices available over VHF? Go ahead. Sierra Alpha Mike, you can. सेंटर, हाँ, say again. Area control center. ये कंट्रोल सेंटर, उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल। कंट्रोल, नेक्स्ट वन, टावर, एरोड्रोम कंट्रोल टावर, ठीक है, एरोड्रोम कंट्रोल टावर, उसको हम लोग बोलते हैं टावर। वेरी गुड। Aerodrome approach control. एरोड्रोम अप्रोच कंट्रोल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Approach. अप्रोच। वेरी गुड। देन सरफेस, Surface movement control. हाँ, सरफेस surface मूवमेंट, movement control. वेरी गुड, सरफेस मूवमेंट कंट्रोल, that is known as ground. And then another one, Apron control.
एरोड्रोम एप्रॉन कंट्रोल, that is known as apron. ठीक है. Now from lower responsibility to higher responsibility, who is going to be at number 5? Apron. ठीक है. सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप खाली जहाज का मूवमेंट देख लो कि किसको किस स्टैंड पे पार्क करवाना है. ठीक है. पुशबैक के टाइम पे कौन सा एयरक्राफ्ट को रोकना है, किसको पास करवाना है, लाइक दैट. देन ग्राउंड. अगर बहुत ज्यादा बड़ा एयरपोर्ट है तो ग्राउंड के अंदर में ही एप्रॉन को डाल दिया जाता है. ठीक है, कि आप एप्रॉन नंबर 2 का मूवमेंट देखना, आप एप्रॉन नंबर 3 का मूवमेंट देखना. बट जनरली एयरक्राफ्ट के ग्राउंड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है सरफेस मूवमेंट कंट्रोल. ठीक है, दैट इज कॉमनली नोन एज ग्राउंड. क्लियर? देन इट कम्स टावर. ठीक है, टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए रनवे पर से. इनिशियल अप्रोच एंड लैंडिंग्स, उसके लिए है अप्रोच, और सबसे सीनियर है कंट्रोल. वो अपने एयरपोर्ट के साथ साथ आसपास के छोटे छोटे एयरपोर्ट्स पे भी नजर बनाएगा. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द रियल एग्जांपल ऑफ दिस ATC offices in control. Please do have a nice observation over that. This is airport, right? एप्रोन के अंदर में. ठीक है, एप्रोन के अंदर का पहले एग्जांपल देखते हैं. एप्रोन के अंदर में सपोज दिस इज एप्रोन नंबर 2, रेड कलर से जो बाउंड्री कर रहा हूं, एंड जो ग्रीन कलर से बाउंड्री कर रहा हूं, दिस इज एप्रोन नंबर 1. सो ओवरऑल इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्राउंड SMC कि आप ये देखो कि एप्रोन पे एयरक्राफ्ट का मूवमेंट कैसे हो रहा है, या फिर टैक्सीवे पे कौन सा एयरक्राफ्ट किधर जा रहा है, तो इसके लिए है ग्राउंड. लेकिन if there are multiple terminals, multiple aprons, so it is not even possible कि टर्मिनल 1 का ATC टर्मिनल 3 के एप्रोन पे नजर बना पाए. तो उसके लिए क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर में ही एप्रोन कंट्रोल दे देते हैं. एप्रोन 1 का कंट्रोलर, एप्रोन 2 का कंट्रोलर, सारे जहाज सही से पार्क हुए कि नहीं, इसके लिए. सो एप्रोन कंट्रोलर इनसाइड द एप्रोन, ground controllers inside the apron overlook as well as, ठीक है, movement of aircraft to the runway. टैक्सी के मूवमेंट सारे को देखता है ग्राउंड. दोनों क्लियर है सबको? एप्रोन और ग्राउंड के बीच का डिफरेंस. यस, नो, एनीथिंग? Can you repeat once again? Yes, okay. I'll repeat and with another example as well. 2 department we are having, right? Apron control and ground controller, that is surface movement controller. सरफेस मूवमेंट कंट्रोलर का काम है एप्रोन का लुकआउट देखना, एप्रोन के अंदर में लुकआउट देखना, प्लस एयरक्राफ्ट को रनवे तक पहुंचाना. तो टैक्सीवे का मूवमेंट कौन देखेगा? ग्राउंड. एप्रोन के अंदर एज वेल एज टैक्सीवे तक का मूवमेंट. जैसा आपके कंपनी में होते हैं सीनियर टेक्नीशियन, ठीक है, या फिर टेक्नीशियन, या फिर फोरमैन, वट एवर यू से. उनका क्या काम होता है कि वो इंजीनियर्स के बड़े बड़े कामों में अपना हाथ बटाएंगे, बट वो छोटे छोटे कामों को भी डिनाई नहीं कर सकते. अगर एयरक्राफ्ट गंदा है तो वो खुद आके साफ कर देंगे, लेकिन अगर एक दो ट्रेनी अवेलेबल है या फिर कोई जूनियर टेक्नीशियन अवेलेबल है तो उसको बोल देंगे वो वाला एरिया जाके क्लीन कर दो. तो जस्ट एक ही नेचर, एक ही डिपार्टमेंट के जॉब में 2 पोस्ट होल्डर्स, 2 टाइप के डेजिग्नेटर्स. एप्रोन कंट्रोल सिर्फ एप्रोन के अंदर का मूवमेंट कि कौन सा एयरक्राफ्ट कहां पार्क हो रहा है, ठीक है, कौन सा एयरक्राफ्ट कहां पार्क हो रहा है. बट ग्राउंड कंट्रोलर एप्रोन के काम को मॉनिटर करेगा कि एप्रोन ने कुछ गलती तो नहीं कर दी, उसको भी मॉनिटर करेगा, एज वेल एज एयरक्राफ्ट को सेफली रनवे तक पहुंचाएगा. एप्रोन कंट्रोल, सॉरी, ग्राउंड कंट्रोलर. क्लियर है दोनों चीज सबको? Yes. I think
I think I'm a bit confusing over that. Nobody is giving reactions with confidence. Now tell me one thing. ग्राउंड कंट्रोलर का काम है एप्रोन के अंदर में एयरक्राफ्ट का मूवमेंट देखना और एयरक्राफ्ट को सेफली रनवे तक पहुंचा देना। इतना क्लियर है सबको? यानी एप्रोन से Yes, sir. एयरक्राफ्ट को रनवे तक पहुंचाएगा ग्राउंड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. ठीक है। नाउ जस्ट अ सेकंड। ओके, तो ग्राउंड का काम है कि एप्रोन से लेके एयरक्राफ्ट को रनवे तक पहुंचा देना। अब क्या हुआ कि एप्रोन्स इतने ज्यादा हो गए या पार्किंग स्टैंड्स इतने ज्यादा हो गए कि ग्राउंड का वर्कलोड बढ़ गया, तो उसने अपने अंदर में एप्रोन रख लिया बस। लेकिन उसका ड्यूटी क्या दिया? सिर्फ स्टैंड्स का काम देखो। एयरक्राफ्ट को टैक्सी वे पे मैं मॉनिटर करूंगा, तुम सिर्फ टैक्सी एप्रोन के अंदर का काम देखो। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है। तो छोटे छोटे एयरपोर्ट पे, छोटे इन द सेंस मिड साइज एयरपोर्ट पे सिर्फ ग्राउंड कंट्रोलर्स रहेंगे, आप ग्राउंड को कॉल करोगे। बट अगर उसी एयरपोर्ट का साइज बड़ा हो गया या फिर उसके पार्किंग स्टैंड्स दो ऐसे ऐसे जगह पे है कि एक ग्राउंड कंट्रोलर दोनों जगह एक साथ मॉनिटर नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर में एप्रोन कंट्रोल डाल दिया जाता है। क्लियर? Yes, sir. So this was apron and ground controller. Is this clear to everyone other than Bravo Charlie Delta, Sierra Alpha Mike, Sierra Hotel Alpha? Is that clear? Yes, sir. ठीक है। So this was apron and ground. This will simply take the aircraft. These two departments will take the aircraft safely from parking stand to runway. Done? Now for the takeoff and landing. ठीक है। For the takeoff and landing, रनवे मॉनिटर करेगा टावर, एरोड्रोम कंट्रोल टावर। टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ठीक है, इसको मॉनिटर करेगा टावर। इनिशियल टेक ऑफ फेज एंड फाइनल डिसेंड फेज, अगर कोई लैंडिंग वाला एयरक्राफ्ट आ रहा है जिसको लैंड करना है और जो अभी अभी टेक ऑफ हुआ है टिल 5000 फीट, ठीक है, sometime it is 4000 to 5000 feet up to transition level. Something is known as transition level, I'll tell you later. ठीक है, 4000 to 5000 फीट तक टावर, ठीक है, टिल ट्रांजिशन अल्टीट्यूड टावर। आफ्टर ट्रांजिशन अल्टीट्यूड, ठीक है, आफ्टर ट्रांजिशन अल्टीट्यूड, सॉरी व्हाट आई टोल्ड, टावर ना, टावर रनवे से लेके रनवे का काम, इनिशियल टेक ऑफ फेज एंड फाइनल डिसेंड फेज टिल ट्रांजिशन अल्टीट्यूड अप्रोच, ठीक है, अप्रोच देखेगा। जब कोई एयरक्राफ्ट रनवे से ऊपर रहेगा आइदर डिसेंड फेज में या टेक ऑफ फेज में, इसको मॉनिटर करेगा अप्रोच। क्लियर? Yes, sir. और इसके बाद, अच्छा, गिव मी 2 minutes, आई विल बी बैक। ठीक है, आई हैव सम सर्टेन वर्क, आई विल जस्ट गेट बैक टू
Hello, sorry everyone. Actually, I had to attend one urgent call, तो उसके चक्कर में मेरा थोड़ा सा ध्यान भी भटक रहा था while explaining the topic, and थोड़े मोमेंट के लिए ऑफसेट भी हो गया था. Okay, is everyone here? Available हैं सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो अभी मैं बताने जा रहा था the authorities and area of ATC. ठीक है? Now I think I won't do mistake. ठीक है? क्या है कि अपने पास 4 ऑफिस हैं बेसिकली. ठीक है? कंट्रोल, अप्रोच, टावर एंड ग्राउंड. राइट? ग्राउंड और एप्रॉन, ये 2 डिपार्टमेंट लगभग एक ही जैसा काम करते हैं, बस इनका थोड़ा सा ये सीनियर जूनियर वाला केस है. ग्राउंड एंड एप्रॉन कि एयरक्राफ्ट को एप्रॉन से रनवे तक पहुंचा देना है, बस ये काम है ग्राउंड और एप्रॉन का, दोनों मिलके. ठीक है? टैक्सी वे वगैरह मॉनिटर करेगा ग्राउंड ओनली, और एप्रॉन के अंदर का मूवमेंट मॉनिटर करेगा एप्रॉन कंट्रोल. दैट्स ऑल. देन फॉर द टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ठीक है, फॉर द टेक ऑफ एंड लैंडिंग रनवे को मॉनिटर करेगा टावर टिल, ठीक है, टिल ट्रांजिशन अल्टीट्यूड. ठीक है? ट्रांजिशन अल्टीट्यूड जो कि होता है 4000 फीट, या फिर कई एयरपोर्ट पे 5000 फीट. सो 4000 से लेके 5000 फीट तक वेरी करता है. दैट इज नोन एज ट्रांजिशन अल्टीट्यूड. ठीक है? यहां तक रहता है टावर. इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अप टू सर्टेन हाइट दैट वेरीज फ्रॉम एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, उसको मॉनिटर करता है अप्रोच. कि कोई एयरक्राफ्ट कहीं से उड़ता हुआ आ रहा है, देन हाउ दे विल लैंड टू दिस पर्टिकुलर एयरपोर्ट, उसको गाइड करेगा अप्रोच कंट्रोल. उसका नाम है अप्रोच. कि डायरेक्शन बताएगा कि आप इस डायरेक्शन में उड़ रहे हो, हमारा एयरपोर्ट यहाँ पे है, ऐसे टर्न मारो और आके लैंड कर जाओ. तो ये सब काम करेगा अप्रोच. देन ओवरऑल इन सब का रिपोर्टिंग मैनेजर है कंट्रोल, जो कि जनरली पिक्चर में नहीं आएगा इतने सारे ड्यूटी तक, बट वो साइड से मॉनिटर करेगा कि कोई कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है. प्लस एरिया कंट्रोल सेंटर सिर्फ अपने एयरपोर्ट का नहीं, आसपास के 2-3 और एयरपोर्ट को मॉनिटर करेगा. ठीक है? दैट इज नोन एज एरिया कंट्रोल सेंटर. आर दिस थिंग्स क्लियर? समझ में आ गया सबको? चलो हम लोग चार्ट पे देख. that हाँ, बोलो. aerodrome control tower, that Hmm. can you explain? Yes, very good. I'll do. एरोड्रोम कंट्रोल टावर. यहां देखो, सरफेस मूवमेंट कंट्रोल क्लियर है, ग्राउंड का मूवमेंट. टावर देखेगा मूवमेंट ओवर द रनवे एंड अप टू अ हाइट ऑफ 4000 to 5000 फीट. दैट इज नोन एज ट्रांजिशन अल्टीट्यूड. वहां तक देखेगा टावर. टेक ऑफ एंड लैंडिंग ओवर द रनवे एंड इनिशियल क्लाइंब एंड फाइनल डिसेंड 4000 फीट से 5000 फीट तक, ये देखेगा टावर. क्लियर? Yes. So now you can see, we'll take the example of Mumbai and Ahmedabad. It is in front of you. Here you can see, ठीक है, टावर यहां तक देख रहा है, इनर सर्कल. अप्रोच यहां तक देख रहा है. ठीक है? बट जो मुंबई का कंट्रोल है, ये सिर्फ मुंबई को नहीं, पुणे, औरंगाबाद, सोनगढ़, भावनगर, इन सारे एयरपोर्ट पे भी मुंबई कंट्रोल ही देख रहा है. पुणे, औरंगाबाद, सोनगढ़ एंड भावनगर. और ये जो ब्लू कलर की बाउंड्री है ना, दिस रिप्रेजेंट्स कंट्रोल बाउंड्री. यानी मुंबई कंट्रोल के अंदर में 4 एयरपोर्ट, मुंबई इटसेल्फ, औरंगाबाद, पुणे, भावनगर. इज दैट क्लियर? Yes, sir. नाउ यू कैन सी. ठीक है? नागपुर का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है? इट विल बी अ गुड एग्जांपल. नागपुर देखो, ग्राउंड कंट्रोल टैक्सी टोइंग मूवमेंट तक. नागपुर का टावर रनवे और इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट 5000 फीट तक. ठीक है? फिर अप टू सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, 30-50 नॉटिकल माइल तक अप्रोच. ठीक है? फिर आया नागपुर कंट्रोल. नागपुर कंट्रोल सिर्फ नागपुर नहीं, नागपुर,
भोपाल, देखो ये भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, यहां तक इवन नॉट कानपुर, ठीक है, टिल खजुराहो, ये सब नागपुर देखेगा। क्लियर? तो कंट्रोल एक तरह से एरिया कंट्रोल सेंटर, इसलिए उसका नाम दिया जाता है कि अगर एयरपोर्ट छोटे छोटे हैं आसपास में, तो वो सिर्फ अपने एयरपोर्ट को नहीं, आसपास के 2-3 और एयरपोर्ट को मॉनिटर करेगा कि वहां पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है। क्लियर? Here you can take example of Delhi, ठीक है, टावर अप्रोच ग्राउंड, क्लियर, ग्राउंड मूवमेंट, टावर रनवे का मूवमेंट, अप्रोच, लैंडिंग एंड टेक ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि यहां से बाएं टर्न आके या फिर व्यूअर का लोकेशन बता देगा, वहां से आके लैंड करो। फॉर दैट अप्रोच कंट्रोल, नॉट ओनली दिल्ली कंट्रोल, दिल्ली, जयपुर, इधर का पंजाब वाला सारा एरिया इंक्लूडिंग चंडीगढ़, आगरा, अलीगढ़, जलालाबाद, लखनऊ, ग्वालियर, ये सब दिल्ली कंट्रोल के अंदर में। क्लियर है? Who will Yes. decide like this center will monitor these aerodrome only? बिल्कुल बिल्कुल, एरिया कंट्रोल सेंटर इज जस्ट काइंड ऑफ यू कैन से रीजनल मैनेजर टाइप, ठीक है, कि वो सिर्फ अपने सारे डिपार्टमेंट्स के काम को मॉनिटर करेगा कि तुम लोग अच्छे से कर रहे हो कि नहीं, प्लस आसपास के भी दूसरे सारे एयरपोर्ट्स के मूवमेंट को मॉनिटर करेगा। क्लियर? Like how it will define? Suppose I'll give example. Suppose Delhi airport, okay. So who will decide like okay, you will monitor only Punjab, that Chandigarh, Haryana or Aligarh, only these things you will monitor, not नहीं 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 not. नहीं, हाँ, ओके। सो दिल्ली कंट्रोल, ये जो चार्ट बनता है ना, जो हम लोग एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक चार्ट अपलोड करते हैं, या फिर जो Yes. आपको एग्जाम में चार्ट दिया जाएगा, वहां पे एक कंट्रोल बाउंड्री डिसाइड की जाती है। यू कैन से दिस ब्लू कलर कंट्रोल बाउंड्री। तो दिल्ली के अंदर में जो आएगा वो सब दिल्ली मॉनिटर करेगा। क्लियर? ये ब्लू कलर की बाउंड्री बन गई दिल्ली की, तो इसके अंदर के सबको दिल्ली मॉनिटर करेगा। क्लियर? Yeah. सिमिलरली ये वाला देखो, नागपुर का कंट्रोल बाउंड्री, तो नागपुर, भोपाल, खजुराहो, जबलपुर, नागपुर सब, ठीक है। So we'll get to know over this chart later on. For now, I had just briefed the basic roles of tower, ground, approach, and control, and I hope I was clear over that term. Okay? And if anything is confusing, don't be worried. जैसे ही हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, that is known as chart reading technique. ठीक है? Once we'll get to know how to read the chart, you will get to know which area of ATC is working specifically for what purpose. ठीक है? आपको आगे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिलहाल के लिए चारों डिपार्टमेंट का बेसिक रोल आप लोग समझ के रखो। अगर ग्राउंड बोल दिया तो आप बस इतना समझो कि ग्राउंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एयरक्राफ्ट को रनवे तक पहुंचाने के लिए है। ठीक है? रनवे पे मॉनिटरिंग के लिए टावर है कि कौन सा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होगा, कौन सा एयरक्राफ्ट लैंड होगा, रनवे को खाली रखा जाए। ठीक है? नो ऑब्स्ट्रक्शन, उसके लिए टावर। एक बार एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर गया तो 5000 फीट के बाद टावर का रोल खत्म, फिर अप्रोच का रोल शुरू। ठीक है? फिर अप टू सर्टेन हाइट 10,000, 12,000, 20,000, ठीक है, उतने अल्टीट्यूड के बाद अप्रोच का भी रोल खत्म। ठीक है? उसके बाद आ गया कंट्रोल, ठीक है, जो कि एक लार्ज एरिया को कंट्रोल करेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। So we'll get to know more about this topic because this is very important कि किस ATC का क्या रोल है अपना। once we get to know about the chart reading technique कि how to read the chart, what is the definition of areas, किसके authority में कितना सारा एरिया आता है, ये सब हम लोग जब देखेंगे that time you will get to know कि which ATC is having which role and we are going to use numerous of time, trust me.
100-200 बार से भी ज्यादा हम लोग इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि यही एग्जाम का थीम है कि किस एटीसी का क्या रोल है, कब कहां पे फ्लाई करते हुए किस एटीसी को कॉल करना है। दिस इटसेल्फ इज अ चैलेंज इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको बोल देगा आप दिल्ली के आसपास फ्लाई कर रहे हो तो कौन से एटीसी को कॉल लगाया जाए। ठीक है, दिस इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज फॉर अ स्टूडेंट। व्हाई आई एम सेइंग चैलेंज, बिकॉज दिस इज रियली अ चैलेंज। ठीक है, तो हम लोग आगे इसको और डीप में पढ़ेंगे। डन। Now I'm going to open one new topic that is known as location designator. Yesterday I have told about runway designator. So if it is runway 34, how to read this and what is the angle of this runway? Anyone? 340 degree angle. 340 degree angle. And how to read this runway 34? क्या बोलेंगे इसको? Runway 34. Very good, runway 34. And someone will also tell me what will be the reciprocal of this. 3-4 का reciprocal क्या होगा? Sierra Hotel Alpha, Bravo Charlie Delta. Reciprocal of 3-4. 16. Runway 16. 16. Very good. Runway 1. Very good. Now, अब आई है बात ICAO लोकेशन डेजिग्नेटर मींस हाउ यू विल डेजिग्नेट एनी एयरपोर्ट। क्या है, सपोज आपने अपने सिटी में या फिर अगर आप मल्टीपल सिटीज में कभी रहे हो या ट्रेवल किए हो, देन यू माइट हैव सीन मेनी ऑफ द टाइम कि आपको MG रोड, लगभग हर एक सिटी में एक MG रोड मिल जाएगा, महात्मा गांधी रोड, इंदिरा गांधी रोड, लाइक दैट। ठीक है, एंड यू कैन से जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम, इस टाइप से। तो मतलब आपको हर एक सिटी में सिमिलर नाम के रोड मिलने लगते हैं, सिमिलर नाम के मॉन्यूमेंट्स मिलने लगते हैं। तो सपोज अगर इंडिया में किसी एयरक्राफ्ट को लैंड करना है, ठीक है, और उसको बोल दिया जाए कि जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट पे लैंड करना है, तो अगर कोई बाहर से आएगा एरोप्लेन फ्लाई करते हुए, ठीक है, अगर कोई एरोप्लेन बाहर से फ्लाई करते हुए आएगा और उसको जवाहरलाल नेहरू पे एयरपोर्ट पे लैंड करना है, तो उसको पता चला 5 जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट मिल जाएंगे। एक तमिलनाडु में है, एक आंध्रा में है, एक दिल्ली में है, एक मध्य प्रदेश में है। तो कौन से जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट पे, कौन से वाले पे? ठीक है, वो खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा कि 5-5 जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट है। ठीक है, सो टू हार्मोनाइज दैट, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको ICAO बोलो या ICAO बोलो, मीनिंग शैल बी सेम। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हैज केम विद अ सॉल्यूशन कि एक काम करो, पूरे वर्ल्ड को सबसे पहले डिवाइड करो AFSRA में। अप्सरा, आप इसको अप्सरा बोलोगे सब लोग समझेंगे। ठीक है, अप्सरा बोलो या AFSRA बोलो, चलेगा। ठीक है, क्या होता है AFSRA? दिस इज एरोनॉटिकल फिक्स्ड सर्विसेज रूटिंग एरिया। मतलब आप फिक्स्ड स्टेशन बनाओ, मूवेबल नहीं, फिक्स्ड स्टेशन कि एयरपोर्ट पे एक ऑफिस बना दिए, एक बिल्डिंग बनाए जो कि कहीं हिलेगा नहीं, इधर से इधर ही रहेगा। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में फिक्स्ड स्टेशंस बनाए गए। ठीक है, रूटिंग के पर्पस से। ठीक है, रास्ता बनाने के लिए रूटिंग के पर्पस से फिक्स्ड स्टेशन बनाए गए। 22 फिक्स्ड स्टेशन बनाए गए, 22 AFSRA। ठीक है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड 22 AFSRA बनाया गया एज पर आवर इंग्लिश अल्फाबेट, एक्सेप्टिंग 4 लेटर इंडिया, एक्सरे, जूलियट एंड क्यूबेक। टोटल 22 अप्सरा हैं, 4 लेटर कोड यूज नहीं किया गया है। क्यों नहीं यूज किया गया है मुझे नहीं पता। एंड
we also not bother about the reason behind this. We will know how it has been not used, not why. Why पे जानने की जरूरत नहीं है, क्यों बिल्कुल लेना देना नहीं है. सीधे समझो कि 22 FSRA बनाए गए 4 लेटर को छोड़ के, और आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कभी कि कौन कौन से 4 लेटर छोड़े गए. ठीक है, कभी नहीं पूछेगा. बट अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसको याद रख सकते हो कि इंडिया, एक्सरे, जूलियट एंड क्यूबेक, इन चारों को छोड़ के 22 FSRA बनाए गए. अदरवाइज नोबडी विल आस्क कि कौन कौन से 4 लेटर यूज नहीं हुए हैं. उसके पर्सपेक्टिव में इंडिया का AFSRA पर गया वी, विक्टर. ठीक है, इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये आपका म्यांमार, ठीक है, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम, ठीक है, एंड ये बैंकॉक वाला इलाका. ठीक है, शायद थाईलैंड, हाँ थाईलैंड बोलते हैं उसको. थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव्स. ये 5-7 एयरपोर्ट पे इनका पर गया लेटर कोड वी, विक्टर. तो कोई भी एयरपोर्ट जो इंडिया में नया बनेगा उसका डेजिग्नेशन का सबसे पहला लेटर कोड होगा वी. ठीक है, किसी भी एयरपोर्ट का जो 4 डिजिट के लोकेशन डेजिग्नेटर बनाए जाएंगे उसका सबसे पहला लेटर कोड रहेगा वी. क्यों? क्योंकि इंडियन AFSRA को लेटर डेजिग्नेट हुआ है वी. दिस मच क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ठीक है. So ICAO location designator is basically a 4-digit letter code. 4 डिजिट का लेटर कोड है which gives name to any airport. ठीक है, तो we will take example of airport मुंबई. ठीक है, and we will start from that. मुंबई का लोकेशन डिजिग्नेटर है VABB. सिमिलरली अगर आपने कभी दिल्ली में काम किया होगा तो आपने देखा होगा दिल्ली का लेटर कोड है VIDP. तो we are going to decode this कि how this VABB named for Mumbai and how VIDP named for Delhi. तो हम लोग इसी को समझेंगे आज कि 4 डिजिट का लेटर कोड है, कैसे इसका VABB रखा गया एंड हाउ दिस इज नोन एज VIDP. तो फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट्स इंडियन AFSRA. दिस मच इज क्लियर टू ऑल, राइट? तो अगर इंडिया का कोई एयरपोर्ट रहेगा V से शुरू होगा. दिस अरब कंट्री, मिडिल ईस्ट, यहां पे कोई एयरपोर्ट रहेगा लेटर कोड O. रसिया का यूनिफॉर्म, चाइना का जुलू, जापान रोमियो, ऑस्ट्रेलिया यांकी, इंडोनेशिया W, न्यूजीलैंड अल्फा, साउथ अफ्रीका फॉक्सट्रॉट. ठीक है, अफ्रीका में ही नॉर्दर्न अफ्रीका होटल, लाइक दिस. देन अमेरिका, साउथ अमेरिका साउथ, नॉर्थ अमेरिका किलो, यहाँ पे मैक्सिको वगैरह है माइक, कनाडा सी, यूरोपियन कंट्रीज इंग्लैंड, फ्रांस, इटली एको. ठीक है, और भी इधर छोटे छोटे कंट्री हैं, तुर्की, ग्रीस, ये सब लीमा, लाइक दैट. तो अगर कोई एयरपोर्ट इंडिया में है उसका नाम V से शुरू होगा. अगर कोई एयरपोर्ट अमेरिका में है उसका नाम K से शुरू होगा. 4 डिजिट का ही लेटर कोड रहेगा बट पहला लेटर रहेगा K. ठीक है, दुबई एयरपोर्ट है तो उसका पहला लेटर कोड O ही रहेगा, आगे फिर 3 दूसरे लेटर हो सकते हैं. तो इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट सबसे पहला लेटर कोड V, विक्टर. क्लियर टू ऑल? Yes, sir. फिर आया VABB, तो दूसरा लेटर है A, अल्फा. दिस रिप्रेजेंट्स FIR, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन. क्लियर? अब हमको देखना है कि इंडिया का तो V, फिर इंडिया में 4 रीजनल कंट्रोल्स, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. एक टाइम था जब इंडिया में कुछ भी प्लान होगा 4 रीजनल जोन बनाए जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दैट्स ऑल. ठीक है, तो पहला लेटर V. उसके बाद आया FIR रीजन.
तो इंडिया में टोटल 4 FIR रीजन, कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो जो FIR कोड दिल्ली रीजन को पड़ा, दैट इज आई, इंडिया। दिल्ली रीजन का FIR कोड इंडिया, सदर्न रीजन का FIR कोड ऑस्कर, मुंबई रीजन का FIR कोड अल्फा, और कोलकाता यानी ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न FIR का लेटर कोड एको। यानी अगर कोई एयरपोर्ट साउथ में है तो उसका 2 लेटर होगा VO, वेस्ट में है VA, ईस्ट में है VE, दिल्ली रीजन का एयरपोर्ट है VI। तो अप टू 2 लेटर, इज दिस क्लियर टू ऑल? कि पहला लेटर कोड इज रिप्रेजेंटिंग अप्सरा, सेकेंड लेटर कोड इज रिप्रेजेंटिंग FIR। फॉर दैट दिल्ली इज हैविंग लेटर कोड I, चेन्नई का O ऑस्कर, मुंबई का अल्फा एंड कोलकाता का एको। इज दिस मच क्लियर टू ऑल? यस, नो, एनीथिंग? गिव मी फीडबैक गाइस। 2 लेटर कोड क्लियर है सबको? यस सर। Sierra Alpha Mike, Sierra Hotel Alpha, these 2 letters clear to you? पहला लेटर रिप्रेजेंटिंग AFSRA, second letter representing FIR region. So how many FIR region we are having? Basically 4. Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai. Delhi representing letter code I, ठीक है, Chennai representing letter code O, Mumbai representing letter code Alpha and Kolkata representing letter code Echo. अब जो हमारा ईस्टर्न FIR है इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में। क्यों? क्योंकि यहां पे एक कंट्री था पाकिस्तान, अर्लियर इट वाज नॉट बांग्लादेश, इट वाज पाकिस्तान ओनली। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप कोलकाता में बैठे बैठे नॉर्थ ईस्ट पे अगर कंट्रोल रखोगे तो आपने तो मेरा पूरा स्कैन कर लिया, बीच में से मेरा एक्सरे हो गया। आप यहां से अगर ऑब्जर्व कर लोगे तो मैं तो पूरा का पूरा आपके स्कैनिंग में आ गया, रडार में आ गया। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं, ये नहीं करने दूंगा, बिकॉज हम आपके दुश्मन हैं, तो हम आपको यहां से बैठे बैठे यहां का कंट्रोल नहीं देंगे। नाउ तो उसके लिए क्या किया गया, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने ईस्टर्न FIR को ही ब्रेक किया इनटू 2 पार्ट, ठीक है। लेटर कोड सेम रहा एको, बट कोलकाता FIR और एक बना दिया गुवाहाटी FIR। उसमें क्या किया, गुवाहाटी FIR को कंट्रोल दिया ओनली अप टिल फ्लाइट लेवल 2650, 26,500 फीट तक ही। फिर उसके बाद बोला कोलकाता FIR हम ही कंट्रोल करेंगे। एक तरह से बस पाकिस्तान को ग्राउंड लिबर्टी दी गई कि ठीक है, हम आपको ज्यादा अंदर से मॉनिटर नहीं करेंगे, बट 26,500 फीट इज मच अल्टीट्यूड। उस टाइम पे 1947 में इतने ज्यादा अल्टीट्यूड पे कोई ज्यादा फ्लाई भी नहीं करता था कोई भी एयरक्राफ्ट। तो उस केस में कोलकाता FIR को 26,500 फीट के ऊपर का कमांड दिया गया और गुवाहाटी को नॉर्थ ईस्ट रीजन में 26,000 फीट तक मॉनिटर करने के लिए बोला गया। सो इफ समवन विल आस्क हाउ मेनी FIR रीजन आर देयर, तो अगर आप बोलोगे 5 तो बोलेगा नहीं, गलत। अगर आप बोलोगे 4 तो भी बोल देगा नहीं, गलत। So basically this will ask in part 2. So if someone will ask how many FIR regions are there, then you need to say, ठीक है, basically there are 4 FIR region only, Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. But under Kolkata FIR there is one more FIR, Guwahati, but that operate up till 26,500 feet only. तो आपको इतना आंसर बोलना है, ना ही सीधे 4 बोलना है और ना ही सीधे 5 बोलना है, क्योंकि जो एग्जामिनर रहते हैं अगर वो थोड़े से शाने निकले तो बोलेंगे नहीं, गलत है आपका स्टेटमेंट। तो हमसे ओरल में ही पूछ रहा है ना, थोड़ा सा मोमेंट लेंगे और ना ही 4 बोलना है ना ही 5 बोलना है, दोनों बोल देना है कि बेसिकली देयर आर 4
बट 5 भी हैं। कोलकाता एफआईआर के अंदर में है गुवाहाटी, जो कि ऑपरेट करता है 26,500 फीट तक, उसके ऊपर फिर कोलकाता चार्ज ले लेता है। सो आई होप आई वाज क्लियर अबाउट एफआईआर कंट्रोल्स। एफआईआर रीजन कंट्रोल क्लियर है सबको? Yes. ठीक है, एनी अदर स्टेशन? यस, नो, एनीथिंग? Yes, sir. ठीक है। सो दिस वाज एफआईआर रीजन। टोटल 5 है अपने पास, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो अब हमने देखा कि 2 लेटर कोड, पहला एएफएसआरए, दूसरा एफआईआर। अब 4 डिजिट में 2 डिजिट बट गया, तो ये 2 एफआईआर और अप्सरा तक क्लियर। लास्ट के 2 लेटर कोड कहां से आए? बेसिकली थर्ड एंड फोर्थ लेटर ऑफ लोकेशन डिजिग्नेटर is inspired from the name of city. ठीक है, what I am saying, inspired. Inspired मतलब कि या तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सपोज आप बोलते हो कि मेरे आइडल है, कुछ लोग पूछते हैं ना कि आपके आइडियल पर्सन कौन है, तो आप बोलते हो माय आइडियल पर्सन इज डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, बट ऐसा थोड़ी है कि आप उनके सारे गुणों को फॉलो करते हो या उनके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो, नहीं। सपोज someone will say who is your favorite actor, so I will say my favorite actor is Hrithik Roshan. So do I know the all dance step of Hrithik Roshan? नहीं, कुछ भी नहीं आता, उसका 1% भी नहीं आता। So the last 2 digit of any airport is inspired from name of city, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वो सिटी का नाम ही रहेगा। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग ऑन द चार्ट, इफ यू सी, ठीक है, अगर आप चार्ट पे ध्यान दोगे, लेट मी ओपन वन मोर क्लियर चार्ट। जब आप चार्ट पे ध्यान दोगे तब आप देखोगे कि हर एक सिटी के पास वीओआर कोड रहता है। ठीक है, एयरपोर्ट्स पे वीओआर स्टेशन लगे होते हैं जिसको 3 डिजिट में, ठीक है, जैसे दिल्ली को लिखता है DEL, बेंगलोर के लिखेगा BER, तो 3 डिजिट में शॉर्ट फॉर्म हर एक सिटी का लिखता है। तो मुंबई का जो शॉर्ट फॉर्म आया, ब्रेवो ब्रेवो ब्रेवो, हालांकि होना चाहिए MUM, बट ये नहीं हुआ। वीआर कोड बनाया गया बॉम्बे, इट वाज बॉम्बे अर्लियर, तो इसका वीआर कोड बनाया गया BBB, ब्रेवो ब्रेवो ब्रेवो। सो 3 डिजिट के वीआर कोड में फर्स्ट और थर्ड लेटर को उठा के हम लोग बना लेंगे एयरपोर्ट नेम। V इंडियन एयरपोर्ट, A वेस्टर्न एफआईआर, फर्स्ट लेटर है B और थर्ड लेटर है B, तो ये बन गया मुंबई एयरपोर्ट। ठीक है, लुक एट नागपुर। नागपुर का वीआर कोड क्या है? NNP। इंडियन एयरपोर्ट है तो क्या होगा पहला लेटर? V। वेस्टर्न रीजन का एयरपोर्ट है, ठीक है, मुंबई एफआईआर के अंदर में आता है, महाराष्ट्र में आता है नागपुर, तो सेकेंड लेटर क्या होगा? A। अब इसका क्या है लेटर कोड? NNP, तो पहला लेटर कौन सा है? N, थर्ड लेटर कौन सा है? P, तो VANP इज द पिकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर ऑफ नागपुर। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है ये चीज? Yes. Then who Yes, is sir. going to tell? Then who is going to tell me about औरंगाबाद? ट्राई करो एक बारी, औरंगाबाद का बना के बताओ। V, ट्राई करो। V क्यों? V क्यों हुआ? because of Apsara. हाँ, इंडियन अप्सरा, डन। देन नेक्स्ट A, A, वेरी गुड। आगे AEU, AU. AU, वेरी गुड। तो ये हो गया औरंगाबाद, VAAU, डन। नाउ सो बाय द रूल, ठीक है, रूल कहता है कि आप व्यूआर कोड के फर्स्ट और थर्ड लेटर को उठा के बनाओगे एयरपोर्ट कोड। ठीक है, इंदौर का कौन बताएगा? एक बार ट्राई करो इंदौर का।
वी ए, ठीक है, मध्य प्रदेश मुंबई कंट्रोल के अंदर में आता है। बताओ वी ए और आगे क्या होगा? आईडी। आईडी। वेरी गुड। सो रूल सेज कि आप फर्स्ट और थर्ड लेटर को उठा के बनाओगे एयरपोर्ट कोड, लेकिन इंडिया में हम रूल कहाँ मानते हैं? ठीक है, और खास करके सबसे ज्यादा रूल तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही तोड़ते हैं। ठीक है, इंडिया में हमको तो आदत बन चुकी है रूल तोड़ने की, बिना रूल तोड़े तो मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पूरा कचरा फैला दिया। कैसे बताओ? दिल्ली का कोड बना के बताओ। somebody try about Delhi as per the rule। ट्राई करो। VIDN। V आई आई डी N। हाँ एन होना चाहिए, VIDN। लेकिन अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे काम करते हो तो आपको पता होगा है क्या एक्चुअल में, VIDP। ठीक है, अब इसमें क्या किया, फर्स्ट और सेकंड लेटर को उठा लिया। क्यों किया पता नहीं, अगर मिले तो मैं उनसे पूछूं कि आपने रूल क्यों तोड़ा, लेकिन जब तोड़ चुका है तो अब तो हमको एक्चुअल पे काम करना है। ठीक है, सो दिल्ली का है VIDP। और सिर्फ यहीं पे चेन नहीं आया सबको, लुक एट द कोलकाता। कोलकाता का कोई बना के बताओ। CEA, दिस इज कोलकाता, इसका कोई बना के बताओ। VECA VECA। ये हो गया फर्स्ट और थर्ड का यूज किए तब। अगर फर्स्ट और सेकंड का यूज करोगे तो क्या बनेगा, VECE। ठीक है, या फिर वो भी गड़बड़ हो गया तो आप क्या बना सकते हो ज्यादा से ज्यादा, VEEA, मतलब आपके लास्ट के 2 डिजिट VR कोड से मैच तो करे। यही सब बन सकता है ना पॉसिबिलिटी, कि इन तीनों में से कोई भी हो सकता है एक कोलकाता का लोकेशन डेजिग्नेटर। लेकिन एक्चुअल में क्या है, VECC। VECK। सी के नहीं, CC। ठीक है, एक्चुअल में है VECC, यानी हमको इधर भी चेन नहीं आया। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड कि लास्ट के 2 डिजिट ना इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, लेकिन हमने उसको फॉलो नहीं किया। और ये कभी अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले मिलेंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों किया आपने। सो हेयर वी आर नॉट गोइंग टू क्वेश्चन एनी अथॉरिटी कि तुमने ये भसर क्यों फैलाया, बट आई विल टेल टू फाइंड हाउ इट इज rather देन क्वेश्चनिंग why इट इज। क्यों था अब हम उसको ठीक नहीं कर सकते, इसलिए अब हम पढ़ेंगे कि है क्या एक्चुअल में। सो whenever you are unknown, जब आपको किसी भी एयरपोर्ट का लेटर कोड पता नहीं है तो आप हमेशा रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, डजेंट मैटर वो गलत होता है या सही होता है, आप रूल को फॉलो करेंगे। सपोज अगर पुणे का बनाने का बोल दिया जाए तो आप हमेशा लिखोगे VAPN, अपने साइड से आप रूल को फॉलो करोगे। लेकिन जो सर्टेन एक्सेप्शंस हैं उसको भी हम 1 by 1 कवर करते हुए चलेंगे। सो वी आर हैविंग टोटल 8 हाइपोथेटिकल चार्ट इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम में टोटल 8 हाइपोथेटिकल चार्ट हमको मिलते हैं। तो कल से, ठीक है, आफ्टर रीडेबिलिटी चेक 1 by 1 एक चार्ट का एक दिन में कम से कम हम लोग सारे एयरपोर्ट्स के लोकेशन डेजिग्नेटर को देखेंगे। जब आपको अपने साइड से आंसर करना होगा, आप बाय द रूल आंसर करोगे, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर का यूज करते हुए। अगर वो सही है वेल एंड गुड, अगर उसमें एक्सेप्शन है तो मैं आपको नोटिफाई करूंगा और आप उसको नोट कर लेना कि इसमें एक्सेप्शन है। जैसे भोपाल में, ठीक है, भोपाल का है VABP, तो मैं आपको कल हाईलाइट कर दिया करूंगा कि भोपाल का एक्चुअल में VABP है। जैसे दिल्ली का एक्चुअल में है VIDP, डेल्टा पापा, तो ये मैं आपको हाईलाइट कर दिया करूंगा कि बाय द रूल होना कुछ और चाहिए लेकिन एक्चुअल में कुछ और है। तो ऐसे ज्यादा नहीं, 10-12 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, 10-12 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिसमें इस तरह से रूल तोड़ा गया है।
तो हम लोग उसको 1 by 1 करके याद कर लेंगे। बट अभी के लिए अपने अंदर बिल्कुल भी फियर मत इंग्रेस होने देना, बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए कि सर इतना सारा एयरपोर्ट का याद करते रहेंगे क्या? नहीं, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। ऑल्दो आपको कभी भी कोई भी एयरपोर्ट का लोकेशन कोड बनाने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है? तो बोलोगे सर फिर पढ़ा क्यों रहे हो इतना तामझाम, जब बनाना ही नहीं है तो। जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें जो आपका क्वेश्चन रहेगा ना कि आपको दिल्ली से चेन्नई जाना है या दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आपके क्वेश्चन में जो एयरपोर्ट के नाम लिखे रहेंगे वो इसी फॉर्मेट में लिखे रहेंगे, लोकेशन डिजिग्नेटर के फॉर्मेट में। और आपको डिकोड करना है VIDP क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये दिल्ली है। बनाने के लिए कोई नहीं बोलेगा कि भुवनेश्वर का बना दो, नहीं, सिर्फ एग्जाम में इसको डिकोड करना है, दैट्स ऑल। तो अगर किसी चीज को डिकोड करना है तो पहले उसकी थ्योरी तो पता होनी चाहिए, तभी तो डिकोड कर पाओगे। इज दैट क्लियर? सो वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, एंड जब हम लोग चार्ट रीडिंग टेक्निक पढ़ेंगे तो आराम से सब क्लियर होगा। बेसिक रूल यही है, अप्सरा प्लस FIR प्लस नेम ऑफ द सिटी। ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज? Yes, sir. So we are going to see certain examples, certain quick examples, not more than that. चारों मेन सिटी के एटलीस्ट देख लेते हैं। लाइक यू कैन सी फॉर मुंबई इट इज VABB, ठीक है, फॉर दिल्ली VIDP, कोलकाता VECC एंड बेंगलोर VOBL, ठीक है। YBOBL, V इंडियन FSRA, O मद्रास, ठीक है, अपना सदर्न FIR, ऑस्कर, BLR है सिटी का नाम, VECC विक्टर इंडियन FSRA, एको सॉरी एको बिकॉज ऑफ ईस्टर्न FIR, CC नेम ऑफ द सिटी, VIDP V इंडियन FSRA, I दिल्ली FIR, DP नेम ऑफ द सिटी, VABB V इंडियन FSRA, A वेस्टर्न FIR, BB name of the city. Clear? So if someone will give you 4-digit letter code, I hope you will be able to understand how the name of that airport has been decided. हो जाएगा? सबसे समझ में जाओगे at least? Give feedback, yes, no, anything? समझ में आ जाएगा अगर 4 डिजिट लिख दिए तो? Nobody is answering. कोई कंफ्यूजन है इधर? हाँ या ना? Anyone? Bravo Charlie Delta? क्या है? No, sir, Tell हो the जाएगा। ठीक है, नो वरीज, हम लोग इसको और भी डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट रेगुलर, ठीक है। आपको बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि इतने सारे एयरपोर्ट्स के कोड बनाऊंगा कैसे, लिखूंगा कैसे, या डिकोड कैसे करूंगा। एंड फॉर माई एक्सपीरियंस, मैं जितने भी 2.5 साल से पढ़ा रहा हूं, आई डोंट हैव सीन एनी स्टूडेंट जिसको इकाउ लोकेशन डेजिग्नेटर को समझने में प्रॉब्लम हुआ हो। आई हैवंट फाइंड एनी। इफ आई एम सेइंग एनी मतलब कोई भी नहीं। तो जब किसी को आज तक प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो आपको भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। एनी हाउ, डेली हम लोग एक एक चार्ट का सारे लोकेशन डेजिग्नेटर देख लेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि प्रॉब्लम की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इकाओ एयरपोर्ट लोकेशन डेजिग्नेटर बाय द लेटर ऑफ 4, अप्सरा प्लस FIR प्लस नेम ऑफ द सिटी, ठीक है। दैट वी विल सी टुमारो ऑनवर्ड्स। जब भी हम लोग क्वेश्चन प्लान करेंगे या जब भी हम लोग फ्लाइट प्लान देखेंगे, देयर वी कैन फाइंड कि आपको सिटी का नाम नहीं लिखेगा, दिल्ली से
मुंबई ऐसा नहीं लिखेगा, लिख देगा VIDP टू VABB। तो आपको समझना पड़ेगा दिस इज दिल्ली एंड दिस इज मुंबई। क्लियर टू ऑल? Yes, यस sir. सर। ठीक है, वेरी गुड। सो दिस इज इकाउ लोकेशन डिजिग्नेटर। नो वरीज, अगर थोड़ा सा भी किसी के मन में फियर है, बिल्कुल अपने मन से टेंशन निकाल दो। टुमारो ऑनवर्ड्स हम लोग एक एक चार्ट का एक बार में सारे एयरपोर्ट्स देखेंगे, ठीक है, एक दिन में एक चार्ट का, जो कि कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा, डोंट बी वरीड। So we have seen ICAO location designator so far, and I think I'll keep it here only. I won't stretch it much. आज हम लोग 1.5 घंटा बैठ गए और टॉपिक भी थोड़ा लेंदी था, तो अगर ज्यादा पढ़ाऊंगा फिर आपको बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। एक ही दिन में सब पढ़ा देंगे तो आगे क्या पढ़ना रह जाएगा, ठीक है? So I'll keep it here only. Today we have seen what important thing, ICAO location designator, right? And that is very important. Important है बट घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। और आज तक मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा कि उसमें फंस रहा हो, आप भी नहीं फंसोगे, डोंट बी वरीड। नाउ I have shared study material through Drive link to admitted students। जिन लोगों ने भी एडमिशन लिया है उन सबको मैंने शेयर किया था। तो I will show how to find the materials। टोटल 4 ईमेल आपको मिले होंगे for the each drive folders। So let me show you accesses। How many people are having access of this folder? जिन सबका ईमेल मैंने आज इधर रजिस्टर किया। So if you have taken admission, तो मैंने आप सबका ईमेल इधर रजिस्टर कर दिया होगा, तो इन लोगों के पास एक्सेस रहेगा, ठीक है? तो इसमें टोटल 4 फोल्डर है। एक फोल्डर है रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ना, YouTube पे रेगुलर अपलोड नहीं करूंगा, ठीक है? बिकॉज दैट इज टेकिंग सो मच ऑफ स्टेप्स। यहाँ वेरिफिकेशन, स्कैनिंग, कंटेंट चेकिंग और बहुत सारा तामझाम है YouTube पे, तो उधर रेगुलर अपडेट नहीं हुआ करेगा, ठीक है? वीकली एक आध बार कर दिया करूंगा। सारे लेक्चर्स ड्राइव लिंक में जो आपको फोल्डर मिले हैं यहाँ पे डेली आपको मिलेंगे, ठीक है? जैसे कल तक जो मैंने पढ़ाया उसके बाद नंबर 1 2 3 करके इस फोल्डर में डेली अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आपका कभी क्लास मिस होता है, इस फोल्डर में आके आपको वीडियो मिल जाएगा। क्लियर? इसका नाम है रिकॉर्डेड लेक्चर्स। देन वन फोल्डर इज फॉर द बुक्स एंड हैंडआउट्स, नोट्स के लिए। जिस स्लाइड का यूज करके मैं क्लास में पढ़ाता हूं, देख सकते हैं वो भी इसी फोल्डर में है। नंबर 1 डॉक्यूमेंट, डेफिनेशन वगैरह मैं जो डिफाइन करता हूं वो सब भी इसी में डाला गया है। नंबर 3 डॉक्यूमेंट। नंबर 2 डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट इज स्पेसिफिकली फॉर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पार्ट 1। जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स फुल फॉर्म के क्वेश्चन है ना, सबके आंसर इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है? जितने भी फुल फॉर्म्स हैं। तो इसका नाम है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसमें नंबर 5 के आंसर मिलेंगे। जो कलर चार्ट एग्जाम में पूछता है, PDF फॉर्मेट में यहाँ अपलोड किया गया है, और सेम चार्ट एग्जाम में रहता है, कोई भी ऑल्टरेशन या किसी भी टाइप का माइनर चेंज भी नहीं, एग्जैक्ट सेम चार्ट, ठीक है? देन यू आर हैविंग RK बाली बुक्स, ठीक है? आप ये भी बोल सकते हो सर आपने तो पहले दिन बोला था कि RK बाली बुक अच्छा नहीं है, मीन्स RT के लिए नहीं है, तो क्यों पढ़ना है? यस, दैट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर RT, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चंस ना ओरल में पूछ देते हैं। प्लस उसके अलावा भी इस बुक में पढ़ने के लिए डेफिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है? डेफिनेशंस पढ़ने के लिए, लाइक देखो कल परसों में जो मैं एरोड्रोम का डेफिनेशन बता रहा था, इतना तामझाम, देयर आई हैड फाउंड इन RK बाली बुक ओनली। यहीं पे मेरे को क्लैरिटी मिली। तो पढ़ने के लिहाज से आपको खाली टाइम मिले RK बाली पढ़ सकते हो। ऑल्सो डेफिनेशंस वगैरह के लिए RK बाली का बुक बहुत अच्छा है। तो अगर आपको पढ़ने का मन हो RK बाली पढ़ो, लेकिन सिर्फ यही बुक पढ़ के RT नहीं निकल पाएगा। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड कि सिर्फ इसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर इनसफिशिएंट हो जाएगा। प्लस जो भी रीडिंग टेक्निक्स नंबर है, अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, वो सब पब्लिश किया गया है थ्रू द बुक ICAO डॉक्यूमेंट 9432। एक्चुअल में
आरटी के लिए यही बुक लॉन्च किया था इकाओ ने, ठीक है। जब इकाओ ने बुक बनाया था ना कि आरटी के लिए कौन सा बुक पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए उन्होंने यही बुक बनाया था, इकाओ डॉक्यूमेंट 9432, 100 पेज का बुक है। देखो कल परसों में जो पढ़ा रहा था यहीं पे लिखा हुआ है सब। लेकिन हुआ क्या कि हमने वी आर इंडियंस, हमने इसमें बाईपास करना शुरू किया। और हमारे यहाँ पे तो जो एग्जामिनर होते हैं उनका भी थोड़ा अलग ही स्टाइल होता है कि बुक में तो ऐसा लिखा हुआ है बट इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा। तो ट्विस्ट करते करते इतना ट्विस्ट कर दिया कि अब आरटी का जो एग्जाम होता है इस मैनुअल के फॉलो करते हुए होता ही नहीं है। इस मैनुअल में जो बोलता है अगर आप उसको पढ़ के आरटी का एग्जाम दोगे तो फेल होगा, पक्का फेल होगे। बट कैसे कॉल जाना चाहिए, कब टावर को कॉल जाना चाहिए, कब अप्रोच को कॉल जाना चाहिए, कॉल का क्या फॉर्मेट होगा, हर चीज इस बुक में बताया गया था। देखो टावर क्या बोलेगा, एयरक्राफ्ट क्या बोलेगा, उसके रिस्पॉन्स में फिर टावर क्या बोलेगा, फिर एयरक्राफ्ट क्या बोलेगा, हर चीज इस बुक में बनाया गया था इनिशियली। लेकिन इसको फॉलो किया ही नहीं इंडियन एजेंसी ने। तो बुक एक्चुअल में यही बनाया गया था लेकिन हमने फॉलो नहीं किया। तो अगर आपको कभी मन करे, ठीक है, या फिर वीकेंड्स में आपके पास खाली टाइम है, 100 पेज का ये बुक है, इसको आप पढ़ो। आई विल सजेस्ट इसको आप पढ़ो। अगर आप इसको एक बार पढ़ लोगे ना थ्रू आउट द पेजेस पूरा का पूरा, देन ट्रस्ट मी, ज्यादा तो नहीं, ज्यादा तो नहीं, बट आपका 30% आरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 30% आरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको हर चीज का बेसिक पता चल जाएगा कि ये होता कैसे है और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी एग्जाम की। लेकिन 30% तो सफिशिएंट नहीं है ना, अपने को 50% चाहिए। तो उसके लिए ही आपको क्लास ज्वाइन करना है कि आंसर करते कैसे हैं हम लोग। तो अगर आपको टाइम मिले तो ये वाला बुक पढ़ना, इकाउ डॉक्यूमेंट 9432, बहुत अच्छी बुक है। और आई विल सजेस्ट कि आप लोग पढ़ो इसको खाली टाइम में, वीकेंड्स पे जब भी छुट्टी मिले। सो यहाँ पे आपको बुक्स मिलेंगे, इसमें था रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उसके लिए सेपरेट फोल्डर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स दिए हुए हैं, ट्रस्ट मी दीज आर द मच इनफ, हद से ज्यादा इनफ है ये। और पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक रिपीट होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं ज्यादा सोचने की जरूरत है। ये फोल्डर में 150 पेजेज हैं और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो दिस इज मच इनफ। एंड कुछ कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़े बहुत डायग्राम्स या रियल एयरक्राफ्ट के पिक्चर्स जिनका हेल्प लेता हूं, वो मैंने इस वाले फोल्डर में डाला हुआ है। जो कोई आपको भी इसका एक्सेस मिला रहेगा, अगर आपको कभी मन करे तो इसको ओपन करके पढ़ो, इसमें रियल एग्जांपल्स मिलेंगे। नहीं मन करे तो मैं जरूर इसको यूज करके आप लोगों को समझाऊंगा, जैसे कल रनवे लाइट्स वगैरह समझा रहा था। सो आई हैड यूज दिस डायग्राम ओनली। तो क्लास में पढ़ाते टाइम जिस भी डायग्राम का हेल्प लगेगा वो मैं यहीं से देख देख के आपको पढ़ाता हूँ। क्लियर? तो these are the study materials that has been shared to you and trust me, इसके अलावा ना तो कोई बुक पढ़ने की जरूरत है, ना ही कोई नोट्स, ना कोई हैंडआउट्स। इतना भी अगर आप कर लोगे ना आपका रिजल्ट पक्का है। बट कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं, क्यूरियोसिटी में इतना ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं कि कंफ्यूजन होने लगता है। तो इन चारों फोल्डर्स के अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, दीज आर द मच इनफ डॉक्यूमेंट्स विद यू। क्लियर? और जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है वो लोग पेमेंट करके अपना अपना ईमेल मेरे को शेयर कर देना, तो मैं आपको स्टडी मटेरियल शेयर कर दूंगा ओवर द ड्राइव लिंक, ठीक है। एंड यूट्यूब पे रेगुलर अपलोड नहीं हुआ करेगा, आप लोगों को ड्राइव लिंक से ही वीडियो देखना है, ठीक है। So that is the planning for entire RT program. And one thing I forgot to tell, हम लोग लेक्चर प्लान को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, ठीक है। उसमें किसी भी टाइप का बाईपास हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आफ्टर लर्निंग 2-3 सेशन, 2-3 सेशन से सीखने के बाद मैंने ये लेक्चर प्लान बनाया है, ठीक है। और इसको हम लोग फॉलो करेंगे। सपोज 8-10 दिन हो गया या 10-12 दिन हो गया,
और पता चला अभी तक हम लोग उतना ज्यादा टॉपिक कवर ही नहीं किया, या फिर हमने 20 दिन क्लास ले लिया और अभी तक लेक्चर 8 तक के टॉपिक पे ही अटके पड़े हैं। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने पैसा पे किया है ना, तो आप मेरे को बोलो कि सर 20 दिन हो गया क्लास का, अभी तक आप लेक्चर 12 ही पढ़ा रहे हो, लेक्चर 15 ही पढ़ा रहे हो, ऐसे में तो सिलेबस इनकम्प्लीट हो जाएगा। या फिर मैंने पढ़ाते पढ़ाते कोई टॉपिक बीच में से छोड़ दिया, तो भी आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, सर आपने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं, ठीक है। एंड दिस इज योर राइट बिकॉज यू हैव पेड द फीस। तो आपकी फुल आपका राइट और फुल आपका हक बनता है कि आप बोलो सर ये टॉपिक पढ़ाए बिना आप आगे कैसे चले गए, ठीक है। तो ये लेक्चर प्लान मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, और पिन करके भी रख दूंगा। आप लोग भी अपना ग्रोथ मॉनिटर कर सकते हो कि आउट ऑफ दीज मेनी टॉपिक्स कितने टॉपिक्स पे मुझे कमांड है, कितना टॉपिक मुझे आता है, और बदले में मेरे से भी क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने ये क्यों नहीं पढ़ाया, ये क्यों नहीं पढ़ाया, ठीक है। सो दिस लेक्चर प्लान आई विल शेयर विद यू एंड वी विल स्टिक टू दिस प्लान ओनली, ठीक है। इसी को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। So these are the systematic approach towards RT. I find it very nice till the time, ठीक है। मुझे ये चीज बहुत अभी तक सेटिस्फैक्टरी लगा है और रिजल्ट्स भी अच्छे हो रहे हैं by following this only. तो I'll suggest कि इसी प्लान के साथ आगे बढ़ना है। 2 दिन से ज्यादा कभी एब्सेंट मत करना, ठीक है। और बस 20-25 दिन का टाइम है, अच्छे से पढ़ो, रिजल्ट विल बी योर्स डेफिनेटली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मीटिंग क्लोज करते हैं आज के लिए बस। और कल से 2 घंटा बैठने की आदत डालना, ठीक है। 2 घंटे पूरे के पूरे लेक्चर कवर करूंगा, ठीक है। ट्राई टू बी हैबिचुअल बाय सिटिंग 2 आवर्स। डन? ओके सर। ठीक है, चलो एवरीवन, आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग हियर ओनली, ठीक है। और कल से आप लोग 2 घंटे बैठने की आदत डालो। 4-5 टॉपिक, थोड़े अच्छे टॉपिक और लेंदी टॉपिक्स कवर अप करेंगे ताकि सिलेबस भी टाइमली खत्म हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो। मीटिंग लिंक सेम रहेगा 1 महीने तक, और मैंने उसको पिन भी कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप पे। और कभी भी किसी भी टाइप का डाउट हो, आप लोगों ने मॉनिटर किया होगा या नोटिस किया होगा, हमने आप लोगों का नंबर एक डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया है जहां पे 15 से 17 कैंडिडेट है मैक्सिमम, ठीक है। और जिनका रिजल्ट पिछले अटेम्प्ट में हो जाएगा वो लोग ग्रुप छोड़ के निकल जाएंगे, जिनका नहीं होगा वो उसी ग्रुप में रहेंगे। तो आपको उसमें मैक्सिमम 12-13 कैंडिडेट मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहते हैं। तो कभी भी किसी भी टाइप का डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, उस व्हाट्सएप ग्रुप में बिंदास डालो, ठीक है। 10 ही लोग हैं, ज्यादा लोग हैं नहीं, बिंदास क्वेश्चन उसमें पुट करो। आई विल ट्राई टू सॉल्व एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो कभी भी डाउट हो स्क्रीनशॉट लो, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, या फोटो खींचो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, ठीक है। 10-15 लोग ही हैं, आपको लजाने की भी जरूरत नहीं है कि भीड़ पूरे दुनिया के बीच में कैसे क्वेश्चन पूछ लूं, इतना माइनर सा क्वेश्चन। इसलिए वो क्वेश्चन ग्रुप सेपरेट रखा गया है, वो वाला ग्रुप। कभी भी डाउट हो बिंदास पूछो, ठीक है। 24/7, डोंट बी बॉदर। रात में 2 बजे पढ़ रहे हो, डाउट आया ड्रॉप कर दो, कल अर्ली मॉर्निंग में उसका आंसर कर दिया करूंगा। डन? So that's how we are going to plan our entire month of study. Be focused for a month, result will be truly yours, trust me. Then that's all for today. I am closing this meeting for all. Have a good night. See you all tomorrow. Bye bye. Good night, sir. Good night.